Hello everyone again. So I hope you have already done this topic in which I have provided you the basic concept about your sequencing. So let us continue. So all these thing we have already completed, that processing of n jobs through one machines, and we have seen various method, that is SPT rule, first come first serve rule, EDD rule, and SGR rule. So now today's topic is processing of n jobs through and machines. So let us come to this topic and see how we can deal with it. And it's again very simple. Now come to this topic. What is it? Processing of n jobs through two machines. So definitely whenever you read a question, so you will easily get to know which topic he is talking about. So it means in this there will be n number of jobs. Definitely there would be finite number of jobs, but number of machinery will be fixed. Now say there are two machinery, say we have A and B. So what is my task? It means there are n different jobs to be processed on two machines, and it is desired to determine a optimal sequence of jobs that minimize your total elapsed times, right? कि जितना प्रोसेसिंग में हमें टाइम लग रहा है उसको हम मिनिमाइज कर पाएँ, दैट इज़ अवर मेन टास्क. सो लेट अस कंटिन्यू to our major topic. So how do we start with this topic? Let us see. So it means what? Now you're provided what? You're provided n jobs with two machines. So what it is? So it means, say we have n jobs 1 2 3 up to n, and the machinery are A and say B, right? So now what information will be provided to you, that say there is first job and how much processing time it takes on machine A. So let us denote it by A1, and similarly how much time it take on machine B, that is denoted by B1. Similarly the second job, how much time it take on machine A, it is denoted by A2. Say for third job A3, and so on and so forth till AN. And similar cases for B1, B2, B2, B3, and so on and so forth till PN. And obviously this is time, so definitely times will be in hours or it could be in minutes. So that information will be provided to you in a question. Now the things come, how to find that optimal solution, or how to find that optimal sequence, and what is the algorithm which provides us to find that optimal sequence. That sequence is known as Johnson's algorithm. So it is also provided in your books. Let us see. So this is my algorithm which is provided, Johnson's and Bellman algorithm, and there are few steps which were involved in it, and with the help of these steps we can easily tackle all the problems. So let us see what is the Johnson's algorithm and how do we proceed with the algorithm. So let us come to this topic. So now this is my Johnson's algorithm. So let us see and study. Very simple. एक बार आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा. What this algorithm, this helps us out. This helps us in finding what is the possible optimal sequence for such type of questions in which there are n number of jobs and exactly two machineries are involved. So let us see. सो पहली इन्फॉर्मेशन हमें क्या प्रोवाइडेड है, दैट हमें हर जॉब का हर मशीनरी पे कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है वो हमें पता है. सो व्हाट इज़ माय फर्स्ट स्टेप इज एग्जामिन ए आईज एंड बी आईज फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 to n एंड फाइंड आउट द मिनिमम ऑफ ऑल दीज ए आईज एंड बी आई. मतलब सारे A1 A2 AN B1 B2 BN को देखो और उसमें से जो सबसे मिनिमम है उसको ढूंढो. ओके. नाउ अब मिनिमम कैसे आ सकता है? हो सकता है मिनिमम इनमें से कोई आए, या हो सकता है मिनिमम कोई इनमें से आए. तो आपको उसमें कैसे करना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उस जॉब को उसकी पोजीशन असाइन करेंगे कि वो फर्स्ट में होनी चाहिए या एंड में होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए. नाउ कम टू माई स्टेप 2. व्हाट इज़ माई स्टेप 2? इफ़ दिस मिनिमम इज़ फ्रॉम ए के, मीन्स इन ए आईज में से कोई भी एक मिनिमम है, देन डू दैट केथ जॉब फर्स्ट. गॉट इट. सो आप एक बार पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन से हमें समझ आ जाएगा. सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि जो मिनिमम आए वो बी आईज में से आए. सो इफ़ दिस मिनिमम इज़ फॉर बी एनी बी आर फॉर सम आई इज इक्वल्स टू आर, देन डू द आर एथ जॉब इन द लास्ट. ये आपको ध्यान रखना है कि जो ए एथ जॉब है उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे पुट करेंगे, बट अगर मिनिमम बीज में से है तो उसको हम लास्ट में असाइन कर देंगे. ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ अब ऐसा भी हो सकता है कि सपोज मिनिमम हमने फाइंड करा और मिनिमम ऐसा आ जाए कि यहाँ पर कोई मिनिमम आ जाए या ये दो सेम मिनिमम आ जाए,
करेक्ट। या ऐसा हो सकता है कि ये और ये मिनिमम दोनों वैल्यू सेम हो, तो उस ऐसी सिचुएशंस में तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि कोई बी और ये वाला बी ये दोनों सेम हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। सो दिस क्लैरिफाइज माई सिचुएशन, टाई सिचुएशन स्टेप नंबर 3। इफ़ ए के इज इक्वल्स टू बी आर, मतलब कोई भी ए और कोई भी बी दोनों सेम है मिनिमम, देन प्रोसेस द केथ जॉब। केथ जॉब कौन सी थी, जो ए के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो जॉब है उसको हम फर्स्ट पुल में पुट कर देंगे, और जो आरथ जॉब है जो कॉरस्पॉन्डिंग थी बी के, उसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल एंड में पुट कर देंगे। समझ आया। सिमिलरली नेक्स्ट सिचुएशन, जब ए के इज इक्वल्स टू ए जे मीन्स एनी ऑफ ए आईज, बोथ टू ए आईज आर इक्वल, दैट इज टाई फॉर मिनिमम अक्रॉस among AI. Then select the job corresponding to the minimum BIs. Means आप बी के और ए जे को देखेंगे, मतलब ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा बी के, एंड सिमिलरली ए जे के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा बी जे। तो उन बी में से आप मिनिमम ढूंढेंगे, और जो मिनिमम पहला होगा उस वाली जॉब को आप क्या रख देंगे, पहली पोजीशन पे पुट कर देंगे। समझ आया। सिमिलरली द थर्ड स्टेप इज कि दोनों में मिनिमम दोनों क्या हो सकते हैं, बी सेम हो सकते हैं, बी आर इज इक्वल्स टू बी एस। देन तो हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग ए को देखेंगे, यानी ए आर को देखेंगे और ए एस को देखेंगे, और उनमें से मिनिमम फाइंड करेंगे। सो वट एवर इज़ द मिनिमम देन यू प्रोसेस दैट जॉब इन द लास्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि किसको हम फर्स्ट पोजीशन पे पुट करेंगे या किसको हम लास्ट पोजीशन पे पुट करेंगे। ओके, सो इस तरीके से हम सारी जॉब्स को उनकी पोजीशंस पे लेकर आते हैं, और इन दैट वे वी विल फाइंड अवर ऑप्टिमल सीक्वेंस। सो कम टू अवर स्टेप नंबर 4, क्रॉस आउट द जॉब्स ऑलरेडी असाइंड। मीन्स एक बार जिस जॉब को असाइन कर दिया उसको आप क्रॉस आउट कर दीजिए, फिर बचे हुए जॉब्स में से आप ए आईज और बी आईज का मिनिमम ढूंढेंगे, एंड repeat the steps from 1 to 3, arranging the jobs next to first or next to last until all the jobs have been assigned, and thus in this way you will find your optimal sequence. So this is my basic algorithm, very easy algorithm. एक example देखते हैं और आपको बहुत easily समझ आ जाएगा कि इसमें हमें करना क्या है. So let us come to our example 6. So let us consider this example. What is my example? Determine the optimal sequence for this sequencing problem, in which you can see how many jobs are there. There are 1 2 3 4 5 6 7 jobs, and how many machinery are there? There are exactly 2 machinery. So I hope this is very much clear that it is of this type of problem in which there are n jobs and 2 machines. So how do we find the optimal sequence? It's very simple. So अब हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास 7 जॉब्स है, तो सबसे पहले हम 7 बॉक्स बना लेते हैं अपने पास, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पुट करना शुरू करेंगे. 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, so what was my first step? So again comes to the same algorithm. First step was examine all the AIs and BIs and find out the minimum. ठीक है, तो हम इसमें से मिनिमम फाइंड कर लेते हैं. Let us see what is the minimum. Definitely the minimum is 1. अब मिनिमम किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग. तो डेफिनेटली एज पर द रूल, इफ़ द मिनिमम इज़ फॉर ए के देन केथ जॉब हैज़ टू बी डन फर्स्ट. तो इट मीन्स हमारे पास जॉब कौन सी है, थर्ड, यानी थर्ड जॉब को आप सबसे पहले करेंगे. समझ आया. इसके बाद क्या है कि ये जॉब खत्म हो गई, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस आउट कर देंगे. अब इसका रोल खत्म हो गया. इज़ इट फाइन. ओके, नाउ कम्स, अब जो बची हुई जॉब्स हैं उनमें देखो मिनिमम कौन सा है. मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम अगर मैं देखूँ तो इसमें मिनिमम हमारे पास है 3. एक तो वो यहाँ आ रहा है और दूसरा यहाँ आ रहा है. सो डेफिनेटली व्हाट इज़ दिस सिचुएशन, दिस इज़ अ सिचुएशन वेयर आई एम गेटिंग अ टाई. एंड टाई किस में आ रहा है, डेफिनेटली फर्स्ट वाले में, कि एक ए के और दूसरा बी, दोनों आपस में क्या है, बराबर. तो डेफिनेटली उस केस में हमें क्या करना है, जो केथ जॉब है, केथ मीन्स जो ए के कॉरस्पॉन्डिंग जॉब है उसको आप पहले करेंगे, और जो बी के कॉरस्पॉन्डिंग जॉब है उसको आप एंड में करेंगे. सो लेट अस सी. सो डेफिनेटली ए के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है 2, तो सेकेंड जॉब को हम पहले करेंगे, और जो बी के कॉरस्पॉन्डिंग है उसको हम लास्ट में करेंगे. सो इन दिस वे हमारी सेकेंड जॉब भी असाइन हो गई, और इन दिस वे हमारी फोर्थ जॉब भी असाइन हो गई. आई होप ये बहुत ही ईजी स्टेप है. आई होप आपको समझ आ गया, बिकॉज हम फर्स्ट ऑलरेडी थर्ड असाइन था, तो इसलिए नेक्स्ट पोजीशन हम सेकंड पे ही इसको डाल सकते हैं. नाउ अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस. से 1 5th और 6th और 7th ये जॉब बची है. अगेन लुक फॉर द मिनिमम. डेफिनेटली द नेक्स्ट मिनिमम इज कमिंग आउट टू बी 4, and definitely the next one is 4. Now how to do it with, very simple. Again we can see 2 AIs are same, right? तो इस केस में हमें क्या करना है, let us see our rule. That was my second rule, कि if our AK and AJ are same,
यानी टाई इज अमंग ए आई, देन सेलेक्ट द जॉब कॉरस्पॉन्डिंग टू इट एंड फाइंड मिनिमम ऑफ बी आईज। मतलब अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट जॉब और फिफ्थ जॉब दोनों सेम है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप मिनिमम ऑफ बी आईज देखेंगे। मिनिमम ऑफ बी आई क्या, एक है 5, दूसरा है 6, तो दोनों का मिनिमम क्या है 5, तो डेफिनेटली प्रोसेस दैट जॉब टू द फर्स्ट। तो इट मीन्स अब हम फर्स्ट इस वाली जॉब को कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फर्स्ट, और इन दिस वे हमने क्या कर दिया, इसको क्रॉस आउट कर दिया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हमारे पास क्या बचा, 5, 6, 7, इनमें से मिनिमम डेफिनेटली वो तो 4 ही आना है, तो 4 हमारा ए के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इसको हम कहाँ पुट कर देंगे पहले, तो हमारी ये वाली जॉब भी प्रोसेस हो गई। अब मेरे पास क्या बचा, नाउ आई एम लेफ्ट विथ 2 जॉब दैट इज 6 and 7, तो अगेन वी हैव टू डील विद द मिनिमम, सो लेट अस सी द मिनिमम। सो व्हाट इज माय मिनिमम, 5 and 5. Now this was my last situation when tie is among the BIs, right? So let us come to that topic, means if BR is equals to BS then select the job corresponding to the minimum AI, और उसको आप कहाँ रखेंगे, लास्ट में। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम बी से एसोसिएट कर रहे हैं उसको हम लास्ट में पुट करते हैं, और जब भी हम ए से डील करते हैं उसको हम स्टार्टिंग में पुट करते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, कम टू दिस प्रॉब्लम, हमने ये देखा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए को देखा, इन दोनों का मिनिमम क्या है 7, तो डेफिनेटली इस वाली जॉब को हमें क्या पुट करना है लास्ट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, और अब हमारे पास डेफिनेटली ये वर्क कट गया, क्रॉस आउट हो गया। नाउ एक ही जॉब बचा है, तो डेफिनेटली इसकी पोजीशन फिक्स है, करेक्ट। सो दिस इज द वे टू फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस, and this is the algorithm which tells you the full way how to find the proper sequence for any question of this type. So I hope this is clear. So let us for our convenience, let us see one more problem related to this topic. Come to this problem. So what is my problem, see, come to this, what is it, sorry, find the optimal sequence that minimizes the total elapsed time, because यही हमारा मोटिव होता है, in order to complete the following task through 2 machines in the order ABC minded, this in the order, sorry यहाँ पर आएगा AB not C, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या है, ये मैंने शायद पहले आपको डिस्कस नहीं करा है, किस तरीके से आपकी जॉब प्रोसेस होंगी, मींस वो ऑर्डर बहुत मैटर करता है। मींस कि पहले, इसका मतलब क्या है कि पहले जो भी जॉब होगी दैट विल बी फर्स्ट प्रोसेस्ड ऑन मशीन ए, देन इट विल प्रोसेस्ड ऑन मशीन बी, सो दिस इज फिक्स्ड। This is very important when we have to calculate the actual thing, that is your total elapsed time and each and everything, right? And next, और सिमिलरली अगर क्वेश्चन में प्रोवाइडेड हो ऑर्डर इज़ बी है, तो इट मीन्स आप कोई भी प्रोसेसिंग जो करेंगे पहले आप बी पे करेंगे फिर आप ए पे करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे इलैप्स टाइम चेंज हो जाता है, तो वो हम देखेंगे अभी। आगे क्या लिखा है, ऑल्सो डिटरमाइन द टोटल इलैप्स टाइम एंड आइडियल टाइम फॉर द मशीन्स। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल टाइम, मीन्स कितना टाइम वो खाली हुई है मशीन आपकी, प्रोसेस उस पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, तो आपको वो आइडियल टाइम कैलकुलेट करना है। तो अब हम सीखेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे फाइंड कर जाती हैं। डेफिनेटली अब सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, द ऑप्टिमल सीक्वेंस, और ऑप्टिमल सीक्वेंस के लिए वी हैड द सेम रूल, दैट इज़ अवर जॉनसन्स बेलमैन एल्गोरिथम। तो उसको हम प्रोसीड करते हैं। सो लेट अस सी how to find my optimal job sequence. So let us proceed in the same manner, right? So this was the job. So पहला टास्क क्या था, find the minimum of AIs and BIs. So this was our minimum. So definitely ये B के corresponding है, correct? B के corresponding. तो as per the rule we have to do this job in the end. Now we cross out this job. Now look for the next minimum. Next minimum is coming out to be 3 and 3. So एक A के corresponding है और एक B के corresponding है. So as per the rule we have to first do the job corresponding to A. So ये आ जाएगा 3, और जो B के corresponding है उसको हम लास्ट में करेंगे, करेक्ट, सेकेंड जॉब। सो इट मीन्स दिस जॉब क्रॉस आउट्स, दिस जॉब क्रॉस आउट्स। नाउ कम द नेक्स्ट पार्ट। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है 4, and then we have 4 again. So again this is corresponding to A, this is corresponding to B, and then definitely we have to assign the first job first and we have to assign the 6th job in the end. So now definitely this job cross outs, this cross outs, so what we are left with, we are left with 5th job. So this is my optimal sequence which we have attained with the help of our algorithm. I hope this is very much clear. So अगर आपको समझ नहीं आया तो अगेन एक बार आप algorithm read करके इसको समझ सकते हैं। Now comes the next thing, what he asks you to determine the total elapsed time. Total elapsed time का मतलब क्या होता है कि टोटल उसको पूरी वर्किंग होने में, मीन्स कि जब आपकी जॉब पहली जॉब मशीन ए से शुरू होके और लास्ट जॉब मशीन बी से
पूरा का वर्क कंप्लीट करके सिस्टम से निकली, यानी आपका पूरा टास्क हो गया और दोनों मशीनरी पे पूरा काम हो गया, तो उसमें आपको टोटल कितना टाइम लगा है, दैट इज़ योर इलैप्स टाइम। तो अब हम सीखेंगे कि हम ये इलैप्स टाइम कैसे फाइंड करते हैं, राइट। सो लेट अस सी हाउ डू वी फाइंड इट। सो देखिए, टोटल इलैप्स टाइम, इसके लिए सबसे प्रायर इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ द मशीनरी, जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया हुआ है, दैट ऑर्डर हैज़ टू बी ए बी। सो डेफिनेटली उसी पैटर्न में मैं पहले मशीन ए लिखा है और उसके बाद क्या लिखा है, मशीन बी। और जस्ट इन केस अगर ऑर्डर रिवर्स होता कि मशीन ऑर्डर बी है, तो पहले मैं यहाँ मशीन बी लिखती, फिर मैं मशीन ए लिखती। सो दिस ऑर्डर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस कम टू इट। सो अब हमारे पास क्या है यहाँ, जॉब सीक्वेंस। डेफिनेटली जॉब सीक्वेंस, ये तो रैंडम उसने जॉब्स बताया हुआ था, हमने एल्गोरिथम से जो जॉब सीक्वेंस फाइंड करी है, सबसे पहले आप उसे लिखेंगे, दैट इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो लेट अस राइट माई जॉब सीक्वेंस। व्हाट इज़ इट, 3 1 5 6 2 एंड 4, करेक्ट। सो जो जॉब सीक्वेंस आया उसको एज इट इज़ कॉपी कर दिया, बिकॉज इसी के अकॉर्डिंग हम पूरा टास्क कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव टाइम, मशीन ए। तो डेफिनेटली देर इज़ अ टाइम इन एंड टाइम आउट, मीन्स कोई भी जॉब जो है वो प्रोसेसिंग के लिए कब मशीन ए के पास आई और कितनी देर में वो मशीन ए से बाहर चली गई। सिमिलरली जब वो मशीन ए से आउट होगी तभी वो मशीन बी के पास जाएगी, तो इसीलिए भी इसमें भी टाइम इन और टाइम आउट होना चाहिए। सो लेट अस सी अवर फर्स्ट मशीनरी, फर्स्ट जॉब, दैट इज़ योर जॉब नंबर 3। तो जॉब नंबर 3 में वो क्या बोल रहा है, डेफिनेटली ये कब इन होगी, सबसे पहले तो जो भी मशीन वर्क शुरू होगा वो 0 मिनट्स या आर, जो भी आपकी टाइम की यूनिट है, अब यहाँ क्या लिखा है, टाइम इन आर, यानी 0 आर पे हमारी ये जॉब सबसे पहले मशीन ए में प्रोसेस होने या काम करवाने के लिए आएगी, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड जॉब को मशीन ए पे कितना टाइम लगा। उसने कहा कि मशीन ए पे उसको काम करने के लिए 3 घंटे लगते हैं, करेक्ट। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर मशीन ए में थर्ड जॉब का काम कंप्लीट हो जाएगा, वो कहाँ जाएगी, मशीन बी के लिए। बट मशीन ए तो ऑलरेडी वेट कर रही, तो इट मीन्स पहले उसे 3 घंटे वेट करना पड़ेगा ताकि ये जॉब ए से फ्री होके यहाँ पर आए, और फिर उसके बाद वो मशीन बी पे प्रोसेसिंग करेगा। और मशीन बी पे थर्ड जॉब को करने के लिए 7 घंटे और लग रहे हैं, तो 3 घंटे पे ये आई थी, राइट, और 7 घंटे और लग गए, तो ये कितनी देर में बाहर जाएगी, 10 आवर्स। और इसके बाद दिस जॉब विल लीव अवर सिस्टम। तो आई होप ये आपको समझ आया कि मशीन ए, क्योंकि ऑर्डर पहले मशीन ए का था तो ए पे प्रोसेसिंग होगी, फिर बी पे होएगी। ए पे स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 टाइम पे, तो थर्ड जॉब को ए पे काम करने में कितना टाइम लग रहा था, 3 घंटे, तो इसने हमने 3 घंटे लिख दिया। जैसे ही वो थर्ड जॉब यहाँ से फ्री हुई तो मशीन बी पे गई, तो ऑब्वियसली 3 घंटे उसे यहाँ वेट करना पड़ा मशीन बी को स्टार्ट होने के लिए, और उसके बाद मशीन बी पे उसको 7 आवर्स लगे, तो हमने उसको +7 करके 10 लिख दिया, एंड देन इट लीव्स द जॉब। तो आई होप ये आपको बहुत ईजीली समझ आ गया। So let us come to the next one. Now we have our job number 1. डेफिनेटली जब ये जॉब सीक्वेंस है तो इसका मतलब क्या है, पहले ये जॉब कंप्लीट होगी उसके बाद हम इस जॉब पे आएंगे। तो अब इसका मतलब क्या है, मशीन ए पहले तो वो ऑक्यूपाइड थी ना 3 घंटे, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट जॉब कब एंटर करेगा, जब तक वो 3 घंटे थर्ड जॉब को कंप्लीट नहीं कर लेता। अब क्या है, फर्स्ट जॉब का टाइम देखिए कि उसको मशीन ए पे कितना टाइम लग रहा है, 4। तो 3 घंटे मशीन ए ऑलरेडी काम कर चुकी है, अब 4 घंटे और काम करेगी, तो यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, टोटल 7। समझ आया। नाउ अब मुझे बताइए, देखिए, now what we are saying that machine A is working for 7 hours and machine B is working for 10 hours. तो definitely जब next first job की बारी आएगी तो वो क्या करेगा, यहाँ पर तो वो 7 घंटे में फ्री हो गया, बट यहाँ पर अभी 10 घंटे तक ये मशीन चलेगी, तो जब तक ये मशीन फ्री नहीं होगी तब तक ये एंटर नहीं कर सकता, करेक्ट। सो इट मीन्स यहाँ पर द एंटरिंग टाइम विल बी 10, और सिंपली व्हाट यू हैव टू सी, यू हैव टू सी द मैक्सिमम ऑफ दीज टू, time out of machine A and time out of machine B. Whatever is the maximum, you just put it over here. अब you do the same thing that machine B जो है वो after 10 hours machine B job 1 जो है machine B में after 10 hours आ चुकी है। now again see कि job 1 को machine B में कितना टाइम लग रहा है, 6 hours, तो 10 + 6 कितना हो जाएगा, 16, और उसके बाद this will leave the system। समझ आया। now again रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर 5th जॉब। नाउ 7, तो मशीन ए 7th आवर में फ्री हो गई, तो 7 यहाँ आ जाएगा। 5 का देखिए, 5 का क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 + 7 14। नाउ अगेन यू जस्ट लुक एट द मैक्सिमम ऑफ दीज टू, मैक्सिमम इज कमिंग आउट टू बी 16, एंड देन 5th जॉब को आप इसमें देखिए 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 + 8
24 and then it will leave the system. Now again come to my sixth one. सिक्स्थ जॉब यहाँ पर 14 है तो ये 14 पे ही है, आफ्टर 14 आवर्स ही एंटर कर पाएगी. एंड व्हाट इज़ द ऑप्टिमल टाइम 5. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 + 5 यानी 19. नाउ अगेन लुक एट द मैक्सिमम ऑफ दीज टू. मैक्सिमम इज कमिंग आउट टू बी 24 एंड देन प्रोसेस द सिक्स्थ जॉब इन मशीन बी 4. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 and then it will leave. And then similarly 19. तो यहाँ पर 19 कॉपी कर दो. Now look at for job number 2. 19 + 8 that would be 27. And then look for the maximum of these two. Maximum is coming out to be 28. And then again 8 3. So यहाँ पर क्या आ जाएगा 31 and then it will leave. And similarly for this job 27 and fourth job को कितना टाइम लग रहा है 6 यानी 27 + 6 यानी 33. Now look at the maximum of these two. Definitely maximum is coming out to be 33. तो ये आपको ध्यान रखना है. सो हमारे पास अब हम मशीन 4 को जॉब 4 को बी पे करेंगे तो 3 यानी यहाँ पर क्या 2 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 35. सो नाउ इट मीन्स वॉट हमारा टोटल टाइम हमारे पास कितना लगा 35. सो इन दिस वे वी कैलकुलेट अवर टोटल elapsed टाइम. नाउ हाउ टू फाइंड अवर total elapsed time. So let us see one definition जो आपको पता होना चाहिए और हमने एक्चुअल में वो कर भी ली है. देखते हैं. So टोटल और यू से मिनिमम. सो मिनिमम elapsed टाइम इट मीन्स व्हाट कि आपके सिस्टम को पूरी वर्किंग करने में कितना टाइम लगा. इसका मतलब क्या है टाइम ए मशीन शुरुआत कहाँ से हुई थी 0 से और सारी जॉब्स कंप्लीट कितने टाइम में हो रही है 35 में. बिकॉज इसी के बाद आपका सिस्टम में से सारी जॉब निकल के बाहर आ गई. तो इट मीन्स माई टोटल elapsed टाइम इज़ 35. सो इन दिस वे आप टोटल elapsed टाइम कैलकुलेट करते हैं. तो आई होप ये भी आपको क्लियर है और इन केस कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी आउट. And now come to the same problem. So let us see what is the last part. Last part was ideal time for the machines. It means what अब आपको ये देखना है कि हमारे पास आइडियल टाइम क्या है कि मीन्स हमारी जो मशीनरी है वो कितनी देर तक खाली बैठी है. राइट. सो अब हम देखते हैं व्हाट हाउ टू कैलकुलेट द आइडियल टाइम. सो अगेन इट्स वेरी सिंपल. सो let me I'll do it in a while for you. Okay.